अब मैं कौन उपाय करूं, जेहि विद मन को संसा चूकै, पावनिद पार परों। अब मैं कौन उपाय करूं, जेहि विद मन को संसा चूकै, पावनिद पार परों। जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हाँ पतित तारों। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। और अज दे ये गुरमत दीवान धर्म दी चादर, सरिश्त दी चादर, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दी शहादत नूं समर्पित ने। भाई साहब जी अमृत गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे सन। आओ जिस सतगुरां दे शहादत दे संबंध विच आपां गुरु चरनां विच हाजिर होए हां, सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दे पवित्र जीवन और उन्हां दी अमृत बाणी विचों आपां विचार कर सकीए। आप जितने सतगुरां जी दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, साध संगत किरपा करो, असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां नूं गुरु नानक नाम लेवा सिख
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣੇ ਖਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਏ, ਦੂਜਾ ਸਹਾਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਿਮਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਠੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਡਿਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਠੇ ਕਿਹਾ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਏ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਡਿਠੇ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਿਮਰਿਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌ ਨਿਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। 2 ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਡਿਊੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਅਡਰੌਲੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇਗ ਵਰਤਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਿਆਗਮਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਗ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤੇਗ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇਗ ਚਲਾਣ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਤੇਗ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ।
क्योंकि ये नुकते बाबा बुढ़ा साहब जी वो शख्सियत ने जिन्हां ने 113 साल गुरु इतिहास नूं देखिया माणिया ते अपने पिंडे ते हंडाया है। 1506 नूं बाबा बुढ़ा जी का जन्म होया है। बेनती है 1518 नूं गुरु नानक साहब नूं मिले आ, ये 12 साल बन गए। ते 1631 नूं बाबा जी ने चलाना किया है। 1506 तो लैके 1631 तक 125 साल बनते आ। 125 सालों में धन बाबा बुढ़ा साहब ने 113 साल सिर्फ सिक्खी कमाई है, एक सदी ते 13 साल उत्ते। पर मैं इस करके जिक्र कर रहा अज तो थोड़ी जी नैगेटिव कुछ, मैं उंज तो वैसे कभी नैगेटिव बोलता ही नहीं होंदा, क्योंकि अज सब तो वड्डी जिहड़ी बीमारी लग गई वो नैगेटिविटी इन्नी आ चुकी है, रह रब दा ना असी मर गए जी, असी डुब गए जी। मैं सच्ची कहना, मैं स्टेज ते बैठा, जफरनामा तुहाडे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी का दस्तावेज है, सतगुरां दी बाणी है, ते महाराज ने उदों लिखी जदों चारे पुत्र शहीद हो चुके आ, 3 प्यारे शहीद हो चुके आ, माता जी शहीद हो चुके आ, आनंदपुर साहब नूं उजाड़ दिता गया, हाथी घोड़े कुछ भी नाल नहीं, पर सतगुरां ने पूरे जफरनामे च सब कुछ जान तो बाद किते नहीं क्या मैं मर गया होए। उन्हां क्या नहीं, अजे 4 चिंगियाड़ियां बुझियां ने, अजे तां अग दा भांबड़ बलन वाला है। असीं किस गुरु दे सिख हैं, इन्ने नैगेटिव हो गए, क्योंकि साडी कल्ला साडा कसूर नहीं। अज पूरे दा पूरा वर्ल्ड, मेरा ख्याल है तकरीबन 80% लोग नैगेटिव ही चलते हैं, क्योंकि अवगण कट्ठे कर रहे हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया ते बैठे आ, चाहे वो किते बैठे आ। याद रखियो, जेड़ी चीज भांडे विच पावांगे वो ही मूँह विचों निकलनी है। जे मैं केतली विच पानी पाया ते टूटी ने दुध नहीं बना देना, वो कुछ निकलना। जो कुछ इस भांडे च जे मैं किसी की बुराई पांगा ना, तो याद रखियो मेरे जीवन चो चंगियाई नहीं निकलनी। चंगियाई इकट्ठा करांगे तो चंगियाई निकलेगी, जे सारी जिंदगी अवगण इकट्ठे कीते ते बुराई ही निकलेगी। पर इनू काबू पाना बड़ा मुश्किल। मस्कीन साहब कहते सन कि टैंकी ते पानी चढ़ाण वास्ते मुशक्कत करनी पैंदी है, उतारन वास्ते तां भावें टूटी एक खोल दो सारी टैंकी खाली हो जाती। सुरत उच्ची चुकण वास्ते समा लगता प्यारिओ, सुरत ढेंदी कला च जाण वास्ते समा नहीं लगता। मैं फिर आपनूं बेनती करा, बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी गुरमुखी पढ़ाई, ते जिहड़ी गुरमुखी आप जी पढ़दे हो, मैं ये विशेष तुहानूं बेनती करके जानी, पंजाब निवासियों, इहनूं तुसीं एक मजहब नाल जोड़ के अर्थ ना करो। ये सिखां दी बोली है। प्लीज जिन्ने गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करना है उन्हों गुरमुखी आउणी अत लाजमी है, क्योंकि गुरमुखी तो बिना गुरु ग्रंथ साहब दा शुद्ध पाठ नहीं हो सकना। गुरमुखी बहुत जरूरी है। पुराने साडे समय च लोग गुरमुखी दा किन्ना अदब करते सन। शेरे पंजाब दे वेले हुण तां बहुत प्रचलित हो चुका है जी। पिछले दिन एक डिक्शनरी भी किसी कढ़ी है कि उत्थे पंजाब विच जिस गोरे ने आउणा उहनूं पंजाबी सीखनी पैंदी सी। फिर अर्ज है, इनू एक मत नाल तुसीं जोड़ के ना अर्थ करो, क्यों जी ये शायद फिरका परस्ती। मेरी अर्ज है कि जदों असीं गुरमुखी सीखांगे, गुरमुखी दे अखरां दी बनतर बनार विच बाबा बुढ़ा साहब दा बहुत वड्डा योगदान है जी। गुरु नानक साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई पैड़ा मोखा जी, ते खास करके मैं जिक्र करांगा बाबा श्री चंद जी का जिक्र भी आउंदा है। गुरमुखी दे बनतर जिहड़ी अज तुसीं दर्शन करदे हो, दी पूरी तरतीब गुरु अंगद साहब ने दिती है। फिर अर्ज है, क्योंकि जिहड़ी पट्टी गुरु नानक साहब ने लिखी है ऊड़े तो शुरू नहीं हुंदी, वो सस्से तो हुंदी। सस्सै सोए सृष्टि जिन साजी सबना साहिब एक भया। उस गुरमुखी नूं उदों लड़ीवार, क्योंकि हुण स्वरूप हो गया ने पदछेद। मैनूं किसी संस्था नाल जुड़िया देखो, पर मैं इस हक च हां कि जे लड़ीवार तो गुरु ग्रंथ साहब की संथ्या की जाए ना, साडा मन भटकन तो टिक जाएगा, क्योंकि लड़ीवार च मन खिंड नहीं सकता। खैर मैं ज्यादा दूर ना जावां। बाबा बुढ़ा साहब ने धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरमुखी सिखाई, जपजी साहब का पाठ सिखाया, ते 1631 नूं बाबा जी चलाना करते हैं। उस तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन हो जाता है, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भी गुरमुखी बाबा बुढ़ा साहब ने सिखाई। उन्होंने जपजी साहब का पाठ सिखाया। पर हजूर बारे कहा जाता है
कि शुरू तो बहुत घट बोलते सन जी, बहुत घट बोलना, चुप रहिंदे सन। पर इन्हां दी चुप दा अर्थ बाहर मुखी चुप नहीं। इन्हां दे जीवन च एक बहुत वड्डी घटना ने जिहड़ा होर भी गंभीर कर दिता, वो सी बाबा अटल राय जी की मौत। गुरु तेग बहादुर साहब के भराता ने बाबा अटल राय जी, जदों उन्हां दी मौत हुई, उन्हां दे संस्कार च गए आ, अंदर नूं इन्नी क गंभीरता चले गए जी, फिर अक्सर बैराग च रहिंदे सन। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे आ कि गुरु तेग बहादुर साहब के जिहड़े आ दोनों नेत्रां वाले कोर सन, ये सचमुच निरंतर जल वगन दे नाल इस चमड़ी का रंग चिट्टा पै चुका सी। फिर अर्ज है, गुरु तेग बहादुर साहब श्री अमृतसर साहब रहे, फिर पिता जी नाल एक करतारपुर साहब आया जिहड़ा जलंधर नेड़े है। इत्थे आप नूं पता जंग हुई है। इसे करतारपुर ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का आनंद कारज माता गुजरी जी नाल हुंदा है। ये भी आपको पता होना, माता गुजरी जी का जिहड़ा पेका पिंड पिछोकड़ है, वो है अजकल हरियाणे विच लखनौर, वो पिंड है। जिमें गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा पिछोकड़ पिंड है, वो ननकाना साहब नहीं, राय भोए दी तलवंडी नहीं, वो इस पंजाब च पिंड जी। जब तुम तरन तारण साहब के नेड़े जाओ, जल्ला साहब नूं पता होना है, उत्थे एक गुरुद्वारा है डेरा साहब, वो स्थान है जी। वह असल च नाम सी पट्ठे पिंड। वो पिंड पट्ठे पिंड है, तरन तारण के नेड़े है। उस सतगुरां दे जिहड़े बजुर्ग सन, उन्हां दा पिछला पिंड इस पंजाब दे विच है जी। चलो बाद विच वंड हुंदी है। गुरु तेग बहादुर साहब करतारपुर विआह हुंदा है। उस तो बाद फिर कीरतपुर साहब पिता जी नाल आ जांदे। कीरतपुर साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरियाई अपने पोते नूं दे दिंदे आ। फिर ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि ये इन्ना पता तो हर सिख नूं होना चाहिए ना। जे बाबा बकाला कहे दा मतलब की है? बाबा बकाला क्या, मैं हुणे तुहानूं एक अर्ज की, बाबा गुरदित्ता जी सब तो वड्डे ने ते गुरु तेग बहादुर सब तो छोटे ने। बाबा गुरदित्ता जी दे दो बेटे ने, बाबा धीरमल जी ते गुरु हर राय साहब जी। गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरियाई अपने पोते गुरु हर राय साहब नूं दित्ती। उसदे बाद तुसीं सारे जानदे हो कि महाराज जी ने फुल टुटा। मैं बड़ी संखेप जी बेनती कर रहा, क्योंकि असीं गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करने पे ना। उस तो बाद जदों गुरियाई पोते नूं दे दित्ती, माता नानकी जी ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं बेनती की। एक दो शब्द होर ने इतिहास विच, जिथे माता नानकी शब्द आवे ਉਹਦੇ अर्थ इं करियो गुरु तेग बहादुर साहब दे माता जी, ते जिथे बेबे नानकी शब्द, नानकी नाल बेबे शब्द आ जाए, ਇਹਦਾ अर्थ है गुरु नानक साहब दे वड्डे भैन जी। माता दा अर्थ है गुरु तेग बहादुर साहब दे माता जी। उन्हां बेनती की, महाराज जी पोते नूं गुरियाई दे दित्ती ते मेरा पुत्र, फिर भी बेनती करा ममता मां दी, ना तां किसे नाल मिलदे ने, ना ज्यादा बोलदे ने, सिमरन करते ने, बाणी पढ़ते आ। मेरे पुत दा इत्थे साडा इतिहास कहंदा, महाराज ने एक रुमाल दिता, एक पोथी दिती ते 5 शस्त्र दे के क्या सी, तुसी कीरतपुर नहीं रुकना, तुसी बकाले चले जाओ। उदों बाबा बकाला नहीं सी, सिर्फ नाम सी बकाला। तुसी बकाले चले जाओ। तुरदियां गया समा आएगा, एक दिन इस मेरे बेटे ने गुरियाई ਇਹਦੇ ਕੋਲ आएगी। अगली गल कही, जेड़ा ਇਹਦੇ घर पुत्र जन्म लेगा, ना उस जैसा कोई होएगा ते ना कोई अगे किसी ने जन्मना है। मेरी बेनती, ਉਹੀ शस्त्र माता साहब कौर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ਜਿਹੜੇ गवा चुके हैं। जी मैनूं बख्श दिओ, क्योंकि ये भी एक दुख की रग है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कीरतपुर साहब तो बकाला आ गए। ये भी आपको पता है, कुछ विद्वान कहते हैं महाराज प्रचारक दौरियां ते चले गए। पर मेरी बेनती जी परंपरा चलती पई है, आपां उहनूं उलंघीए ना। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लम्मा समा इबादत की, उत्थे भोरे च बैठते सन। मैं एक बेनती आपनूं करांगा, क्योंकि अज असीं सुनने आ, जिहड़ा बंदा पानी च वड़न तो बिना तरन वालियां ते कटाक्ष करदा, मेरा ख्याल उहनूं कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आप तू पानी च एक दिन पैर भी नहीं भोया ते उन्हां लोकां दी निंदिया कर रहे हैं जिहड़े तारू ने,
जिस बंदे ने टिक के कदी एक दिन जपजी साहब ना पढ़िया, जिन्नियां मर्जी किताबां पढ़ लो, उन्होंने कोई हक नहीं बंदगी करने वाले ते कटाक्ष कर दे। जां तां पहलां कमाए जी, पानी च वड़ के देखे ते तारुआं दी आलोचना करे, जिहदे पैर ही सुक्के पए ने वो तारुआं दी आलोचना कर रहे जी। अगली बेनती जी, गुरु तेग बहादुर साहब, बाबा बकाला साहब, आपां कंट्रोवर्सी नहीं, उत्थे भोरा है। याद रखियो, गुरु तेग बहादुर साहब का सुभाਅ सी, जिथे भी जाते सन, लम्मा समा जिथे रहिंदे सन, भोरे च बैठते सन। आनंदपुर साहब तो गुरुद्वारे का नाम ही भोरा साहब है। जे ये कहांगे महाराज उत्थे नहीं बैठे, तो जो सीसगंज के सामने जो स्थान है आनंदपुर साहब, भोरा साहब है। मैं लखनऊ गया, कानपुर हजूर गए, उत्थे मैं कई थावां ते सतगुरां जी के स्थानां दे दीदार कीते। तकरीबन उन्हां दा सुभाਅ सी एकांत विच रहना। ये गल कहनी जी, सिक्खी भोरियां विच बहन वाली खां, पर पंचियां पखंडियां ते विचारियां वास्ते नहीं। पर याद रखियो, भोरे विच रहन वाले ही सिर तली उत्ते रख के चलदे हुंदे। जे इबादत है, बंदगी है, सिमरन करदे हां, महाराज उत्थे लम्मा समा उत्थे बतीत कीता है। इधर गुरु हरराय साहब गुरियाई ते ने, गुरु हरराय साहब तो बाद गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह गुरियाई ते आ गए। 1656 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। 1661 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। 1664 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਓਤੀ ਦੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ, 1656, 1661 ਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ 1664 ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि सतगुरु गुरु नानक साहब के घर की रीत है, जान तो पहला वो गुरु जोत कित्थे स्थापन करनी है, वह इशारा कर दिया तो मर्यादा है। मैं इत्थे एक बेनती की सी, कई बार पूछने पीरी के अर्थ की ने। मीरी के अर्थ आप करने जी, मीरी का अर्थ शस्त्र नाल सियासत नाल करने, पर याद रखियो, कली कुर्सी की लालसा रख के की हुई सियासत नूं गुरमत ने नहीं प्रवान किया। फिर अर्ज है, उत्थे पीरी का अर्थ बड़ा डूंगा जी। पीरी का अर्थ भी वैसे किरपान नाल कीता महाराज जी ने। आपनूं पता होना, भारत विच अंग्रेज़ां दे वेले तक, अंग्रेज़ां दे 47 तक, एक है मुगलों के वेले, पहला लोधी ने, लोधियां तो बाद मुगल आया। मुगल हुंदा सी सम्राट, शहनशाह, बादशाह। बादशाह दे राज विच किन्ने राजे हुंदे सन? जगीरदार हुंदे सन, राजे हुंदे सन। ध्यान नाल सुणियो मेरी बेनती, हर राजे नूं अपने तो बाद गद्दी नशीन जिन्हें होना, उहदे बारे लिख के बादशाह नूं देना पैंदा सी। वो जिउंदे जी ये कहंदा हुंदा सी भी मैं हाँ, मेरे तो बाद मेरा आ पुत्र गद्दी नशीन होवेगा। जिवें अरब विच अजे भी, हालांकि वो तो दिंदे नहीं ना, एक बादशाह है सऊदी दा, दूजा उहदा क्राउन प्रिंस है। दुबई का एक बादशाह है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਧਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਦੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਏ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਆਹ ਹੈ ਪੀਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
पर चलाने तो पहला गुरियाई की समग्री नूं हत्थां नाल 3 वारी परिक्रमा करके क्या बाबा बसे ग्राम बकाले। बाबा का मतलब दादा। फिर सुनो, इत्थे बाबा का अर्थ बजुर्ग नहीं करना। बाबा क्यों क्या? क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब दे बाबा जी ने बाबा गुरदित्ता जी। फिर सुनियो, पिता गुरु हर साहब जी, दादा बाबा गुरदित्ता जी। बाबा गुरदित्ता जी दे सब तो छोटे भरा ने गुरु तेग बहादुर जी। ते साडे घरां विच असीं बाबे दे भरा नूं बाबा ही कहने आ। महाराज ने कहा गुरियाई मेरे भरा कोल नहीं, ये बकाले जाएगी जिथे मेरा बाबा बैठा होया है। बाबे दा अर्थ है गुरु तेग बहादुर साहब दादा जी। गुरु तेग बहादुर साहब उस वक्त दिल्ली नहीं जो महाराज चलाना किया, ज्योति जो समाए। इस तुसीं सारे जानते हो भाई मक्खन शाह जी आउंदे आ। भावें फोटोआं वालियां तस्वीर दिखाई काले दाड़े वाली भाई मक्खन शाह दी जी, हिस्टरी पढ़ो, उन्होंने 70 साल तो ज्यादा उम्र सी जो बाबा बकाला साहब आउंदे आ। बजुर्ग हो चुके सन भाई मक्खन शाह, उन्होंने अपने जहाज चलते सन। मुगल हुकूमत वेले उन्होंने तोप रखन तक की इजाजत से। भाई मक्खन शाह जी आए, सब नूं तुसीं इतिहास तो जाणो, मोहरां सब अगे रखियां, दसवंध कढ़िया उन्होंने। ते जदों शाम नूं बिल्कुल बंदा उदास जिंदा हो गया भी महाराज का बचन झूठा नहीं हो सकता। गुरु हरकृष्ण साहब ने कहा बाबा बकाला, कहते मैनू भुलेखा लग सकता है। अखीर तो ना पूछा कोई होर भी है? एक ने कह दिता हाँ। पिंड वाले ने कहा हाँ एक है, गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे। उन्होंने तो लफ्ज होर तरह का वरत्या ना महाराज ली। कहते बौरा क्या जां झल्ला क्या, वो कहते घट बाहर निकलते आ, शाम नूं आउंदे आ, वो किसी नूं नहीं मिलते। संगत मिलन जाती घर च। उन्हें कहा मना उधर भी जाइए। जदों भाई मक्खन शाह शाम नूं उधर तुर लगे तो उन्हां नाल एक तां जिहड़े पखंडी बैठे 22 मंजियां कईयां जांदियां ने उंज गिनती विच। मैं कोई नवीं गल नहीं कर लगा, मसंद हो सकते हैं होर होण, दावेदार 2-3 ही सन बस। भल्ले तां इन्हां दे नाल सन, तेन इन्हां दे नाल सन, ये ज्यादा सोढियां विचों सन जी। उत्थे जदों सतगुरु दे घर नूं चले भाई मक्खन शाह ते नाल एक तां इत्थों दे सारे लोक, दूजे ओदी अपनी फौज सी लाम लश्कर। आवाज बड़ी उच्ची आई। प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते हैं जो घर च वड़े रौला बहुत, ते गुरु तेग बहादुर साहब पुछदे सेवादार नूं अज अपने घर च इन्नियां आवाज़ां क्यों, ये रौला काहदा? उन्हां कहा महाराज जी इन्हां मक्खन शाह आया जी व्यापारी, वो दर्शन करन आया जी। सतगुरां ने कहा उन्होंने रोक के कहो गुरु घर मत्था टेकन की जाच सिखे, इत्थे रौले पा के नहीं आईदा हुंदा। यही शब्द क्या, ये अदब वाला घर है, इत्थे विखावा पैसे का फौजां का नहीं। उन्हें जाके सीधा ही यह कह दिता कि महाराज जी ने शब्द कहा भी इत्थे ताकत दे प्रगटावे नहीं, इत्थे आपां मार के आईदा है। जदों इन्ना शब्द क्या मक्खन शाह दी अखां भारियां। उन्हें क्या सारे मेरियां सिफतां करने वाले आए, पहला है जिन्हें रोक के क्या गुरमत नहीं हूं। पर भाई जी नंगे पैरी गया, उन्हें महाराज अगर भी पैसे रखे। ये तो खेड वापरी है जी। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु समर्थ ने उन्हें जो पैसे रखे, साडा इतिहास कहंदा महाराज ने चादर ला के दिखाया, कहने लगे इस घासी पई हुई है। सच्ची मुची गुरु तेग बहादुर बेड़े कन्ने लांदे आ जी। फिर अर्ज है ओदा बेड़ा डुबन लगा, मोढा ला के मोढे ते जख्म करके ओदा बेड़ा किनारे ला दिता। बख्श दिया जी, हिंदू धर्म का बेड़ा डुबन लगा। सच्ची शब्द बेड़ी डुबन लगा सी औरंगजेब ना, गुरु तेग बहादुर ने सिर ला के बेड़ा किनारे ला दिता। महाराज जी ने कहा अजे तां निशान ने। बस वो बंदा जिवें बौरा ही हो गया, वो कोठे ते चढ़िया, उन्हें पल्लू दे के क्या भुलिए संगते गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। वो जिहड़ी समग्री दिल्ली तो आ रही सी वो भी फिर पहुंच गई। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी जो प्रगट होए उसे शाम फिर गुरु तेग बहादुर साहब की गोली चली। आप जी नूं पता होना इस बारे। जदों महाराज प्रगट हो गए, मक्खन शाह अपने डेरे चला गया। छीए मसंद ने धीरमल नूं कहा जे अज ये गल बन गई इन्हां दी, तेरे पल्ले कुछ नहीं बहना। उन्हें फिर छीए मसंद नूं कह के गोली चलवाई। महाराज बाहर निकले सन जी, गोली सतगुरां दे मत्थे नूं छू के निकल गई। इतिहास कहंदा थोड़े जे खून दे तुपके निकले। मात नानकी ने मत्था पूंजिया,
गुरु तेग बहादुर गोली चलन लग्या रुक गए। जदों गोली चलनी बंद हो गई तो आवाज दे के पता शब्द की कहते हैं, भले धीर मल भले जी, भले धीर मल धीर। वाहिगुरु इहो जी एडी जरांद कहें धीर मल, परमात्मा तेरा भला करे, परमात्मा तेरा भला करे। ये गल चेते रखियो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। परमार्थ विच ये आपां कहांगे भी सानूं रिएक्ट करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जदों आपां अंदरों साफ आ ना, लख बंदे बुराई करन, सिर्फ रब उत्ते छड़ दिया जे। जदों रब इंसाफ करदा ना, जड़ां पट के रख दिंदा है। उन्हां महाराज ने क्या, भले धीर मल भले जी, भले धीर मल धीर। बहु बार सतगुरु कहो श्रीपत गुणी गहीर। किन्नी बार क्या मक्खन शाह नूं जा दस्या, जिस गुरु नूं प्रगट किया उहदे ते गोली चल गई। वह बंदा ताकत वाला सी। वह फिर आया अपने फौजी लैके, गुरु तेग बहादुर साहब के घर नहीं गया, सीधा धीरमल के घर गया। उन्हें कहा तू गुरु संतान विचों है, नहीं तो तेन मैं उड़ा देना सी। उस मसंद ने जिन्हें गोली चलाई उहदियां मुश्कां बल लियां, जिन्ना समान सी सारा वो लुट के खो के गया। वो वापस लैके आए। जदों वापस लैके आए, गुरु तेग बहादुर साहब हस के कहते मक्खन शाह बड़े आराम नाल बैठे सां, कई सालों के बैठे सा, कोई आवाज नहीं आई। अज ही माया का ढेर लगा, अज ही गोली चल गई है। कहने लगे फिर चुक लिया पवाड़े की जड़, कहने लगे दे दे नू। अगली गल जी कही, मैं एक बार अमेरिका कथा की, सिंह थोड़े जे होर तरह हो गया जी, ये गुरमत नहीं हैगी। नहीं प्यारिओ, किसी बंदे नू ताकत हो के माफ कर देना, ये सूरमियां का काम होंदा है। फिर अर सुनियो, हाँ कीमत पल्ले कुछ ना हो, डरदा मारा कह मैं तेन खिमा किया, वो कमजोरी है। ताकत होने के बावजूद किसी को माफ कर देना बहादुरी होंदी है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा खिमा कर दे। मैं अर्ज करा, इथों भाई मक्खन शाह फिर सतगुरां नाल अमृतसर आया, जिथे दरवाजे बंद कर दिते गए। इथों फिर सतगुरु पिंड वल्ले गए। वल्ले फिर माइयां अमृतसर दियां गईयां। हजूर ने कहा माइयां रब रजाइयां, गुरभगती लाइयां। इथों भाई मक्खन शाह इन्हां नूं मसंदां नूं प्रेर के लै गया कि तुसीं चलो खिमा मंगो। जदों ये गए, उत्थे गुरुदेव ने कहा सी, नह मसंद तुम अमृत सरिए, तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए। इहदा अर्थ सी तुसीं गद्दियां दे बहन दे लायक नहीं, तुसीं अंदरों सड़ चुके हो। असीं तां नमस्कार करना आए सी, असीं कब्जे करन नहीं आए। इथों गुरु तेग बहादुर फिर मालवा रटन करदे आ जी। एक मालवा रटन की पोथी मारे गुरु तेग बहादुर साहब के सब तो ज्यादा अस्थान जिहड़े तुहानूं पता होना मालवे की धरती ते ने। महाराज दे हरियाणे च मिलणगे महाराज के अस्थान। जाट बहुत प्यार करते सन। हरियाणे तो कई पिंड ऐसे ने जिथे एक भी सिखां दा घर नहीं, पूरे पूरे जाटां दे घर ने। अज भी गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान नूं नमस्कार करते। मैं बेनती करा, उस वक्त फिर सतगुरां ने माखोवाल का जिहड़ा स्थान है, ये जमीन खरीद के गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ी मोड़ी गड्डी, इहदा नाम रखा गया चक नानकी। मैं बड़ा संखेप जे मैं इतिहास ही बेनती कर रहा। इतों फिर सतगुरु पूरब नूं जांदे सारियां थावां ते। मैं बेनती करा, उदों मालवे विच धमधान साहब जिहड़ा स्थान है, भी मालवे विच सी। इत्थे सतगुरां ने एक बख्श दित्ती सी भाई मियाँ साहब जी नूं। शायद आपनूं पता होना, सिੱਖੀ च 4 धूणे खोए ने ते 6 बख्शां होईयां ने। बहुत घट पता है जी। 4 धूणे 6 बख्शां, इहदे विचों एक बख्शिश स्थान गुरु तेग बहादुर साहब जी की भाई मियाँ साहब जी ने। इत्थों महाराज पूरब जांदे आ, सतगुरु इलाहाबाद पहुंचते आ। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब के घर माता गुजरी की कुख च प्रकाश हुंदा है गुरु गोबिंद सिंह दा। मैं 2 लफ्ज वरते ने, प्रकाश ते जन्म। उत्थे फिर सतगुरां ने लिखिया, मुरपित पूर्व की इस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात तरबैणी भय, पुन दान दिन करत बताए, तही प्रकाश। प्रकाश है उधर मैं आए किया निवास, तही प्रकाश हमारा भयो। तही प्रकाश ओनू जोड़ के देखिए, प्रकाश होया तरबैणी ते जन्म किथे होया पटना शहर विखे भव लयो। गुरु तेग बहादुर साहब पटना साहब गए। महाराज जी की मैं आपनूं बेनती करा, तकरीबन उम्र उस वक्त 45 साल की हो चुकी सी। तकरीबन मैं कह रहा, तकरीबन शब्द जो वरतना मैं महीने नहीं गिनता। 45 साल की उम्र है गुरु तेग बहादुर साहब की।
41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਘਰ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤ ਬਿਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਆ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਐਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਹ 4-3 ਤੁਕਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਐ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਐ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇ ਸਮੁ ਦਿਓ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕੱਲੂ ਮੈਲੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ। 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਰਮੋਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਚ ਨਹੀਂ। ਘਰ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ, ਆਪ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਢਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੱਚੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੇ ਜਨਮ ਕੀ ਵਧਾਈ ਹੋ। ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
भी गुरु तेग बहादुर साहब आए आ। जेडे पटना साहब गए तुहानूं पता है, माता नानकी जी, माता गुजरी जी, मामा किरपाल चंद जी, भाई दयाला जी, क्योंकि भाई दयाला जी नूं पटना साहब छड्ड गया महाराज। जेडे जेडे देग चों बाले गए ना, वो पटना साहब सन पिछे। ते हुक्मनामिਆਂ च महाराज कहंदे आ पटना साहब दी संगत नूं, भाई दयाले का कहा होया गुरु का कहा समझना। ये सारा परिवार जिथे गुरु का बाग है पटना साहब बाहर, इत्थे फिर सारा परिवार मिलन जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे ने, बाग सुक्का सी जी करीम बख्श दा, रहीम बख्श दा। पिता नूं पहली बार पुत्र ने, ये मैं दुनियावी शब्द वरत रहा, कादियां पहली बार पता नहीं किहड़ियां बख्शां किहड़ियां खेडां ने अपनियां जी, पर संसारी तौर ते पहली बार पिता जी नूं देखिया ते 5 साल की उम्र करीब कह रहा, दौड़ के पिता जी कोल गए। सतगुरां ने उठ के पुत्र नूं गोदी च लै लिया, सीने नाल घुट के लाया, क्या जांदा सुक्का बाग हरा हो गया। वो फिर सतगुरां दे नाम करा दिता गया। इत्थे फिर सतगुरु पटना साहब आउंदे आ। पटना साहब कुछ दिन रुकन तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब पंजाब आ जाते हैं। उस तो बाद फिर गुरु गोबिंद राय जी पटना साहब तो चलते हैं, आनंदपुर साहब नगर वसना शुरू हो गया। इत्थे प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते आ कि जो महाराज आए चक नानकी सी ना, ते पिता गुरुदेव जी नूं देख के महाराज जो मिलते आ दोबारा इत्थे, ते यही शब्द पढ़ते आ, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। उंज बचित्र नाटक च गुरुदेव ने भंगाणी दी जुद्ध तो बाद जिक्र किया भी असी कहलूर दे विच आनंदपुर साहब गांव बनिया है। ਇਹਦਾ मतलब ना ਉਹਦਾ दशमेश पिता जी ने लिया। इत्थे पिता गुरुदेव दे कोल रहे। इत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब दे सालां दा जिक्र करदियां लिखिया है कि मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, कीनी अनक भांता रच्छा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। अगे कहते जब हम कर्म धर्म हो आए, देवलोक दा पिता सदाए। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की दुनियावी तलीम का भी बहुत प्रबंध किया। संस्कृत, फारसी, हिंदवी, ब्रज भाषा, अरबी पिता जी ने उत्थे महाराज ने कहा सानू अनेकों तरह की सिक्ख्या दी गई। प्यारो जिहड़ा दिन तुसीं मनाते पे हो, गुरु तेग बहादुर साहब के सन्मुख 16 कश्मीरी पंडित आए सन। इन्हां दा जिहड़ा जथा सी जिन्ने को मैं पढ़िया खोड़स लिखिया जी 16 आया। इन्हां विचों जिहड़ा आगू सी वो भाई किरपा राम दत्त सी मटन दा। जिहड़े कश्मीर गए मैं उत्थे गया जी, जिथे महाराज ब्रह्मदास नहीं मिले, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, ये उन्हां विचों है। ये फिर आए ते तुसीं आनंदपुर साहब जांदे हो, ते मेरा ख्याल गुरुद्वारा बना दिता है। इन्हां ने फिर खलो के पुकार की सी। पर एक मेरी बेनती है, इस गुरु बख्शीश नूं द्वैश अर्थ ना करिए। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो कि तुहानूं बचा दिता, तुहानूं आ कर दिता। मेरी एक बेनती है, गुरु का बिरद ही ये वे। 3 शब्द वरते गुरु तेग बहादुर साहब लई तवारीख ने। एक वरत्या हिंद दी चादर, दूजा वरत्या धर्म दी चादर, ते गुरु गोबिंद सिंह दी जिहड़े दरबारी कवि सेनापत ने उन्हें शब्द वरत्या सृष्टि दी चादर। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कल्ले एक धर्म दे ने जी। प्यारो सृष्टि विच कल्ला ये प्लैनेट नहीं आउंदा। इस धरती की तो साइंस कहती है भी एक रेत दे कण जिन्नी म्याद वैल्यू है इस सारे पसारे च। गुरु तेग बहादुर साहब सृष्टि की चादर ने। इन्हां ने फिर बेनती की। कश्मीर के गवर्नर नूं औरंगजेब ने कह दिता, लालच नाल डरावे नाल वो सारे तुसीं दान दिओ भी ये इस्लाम चाहनी चाहिए। तो मैं एक तुहानूं बेनती करांगा, मैं सिख प्रचारक हाँ, मैं बिल्कुल कहना सिख नूं अमृत छकना चाहिए गुरु वाले, पर किते भी सिक्खी विच धक्के नाल ते लालच नाल बंदे नूं प्रवेश नहीं कराया जाता। ये कौड़ा सच जे। ਜਿਹੜਾ बंदा पैसों नाल धर्म बदलता पे वो धर्म नहीं हो सकता जी, वो व्यापारी हो सकता है। ठीक है, गिनती वध सकदी, वोटां वध सकदियां ने। फिर अर्ज सुनियो, वोटां दा घाटा वाधा हो सकता जे तुसीं कहो धर्म। ਜਿਹੜਾ धर्म पैसे लैके बंदा चेंज कर रहा, वो धर्म नहीं हुंदा, एक धड़ा हुंदा है। इत्थे ते प्यारे सिर ते आरा चल जाता है, पर धर्म तब्दील नहीं हुंदा। अर्ज ध्यान नाल सुनियो थोड़ी जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने आए,
उन्होंने जिहड़े शब्द वरते वो कहने लगे महाराज पंडित किरपा राम दत्त अगे आए। उन्हें बेनती की महाराज तिलक जंजू खतरे च है, संध्या तर्पण गैत्री खतरे च है, वेद मंत्र खतरे च ने। महाराज गुरु तेग बहादुर सुनी गए। साडा इतिहास कहता 9 साल की उम्र गुरु गोबिंद राय जी आए, उदास सन सारे। महाराज जी ने कहा ये क्यों उदास ने? साडा इतिहास कहता उन्हें क्या पुत्र इन्हां दा अकीदा, इन्हां दी शरदा, इन्हां दा धर्म खतरे च है। पुछदे ने फिर इत्थे किवें आए? कहन लगे अज गुरु नानक दे दरवाजे ते आ गए। वो जिहड़े शब्द वरते उन्होंने ये कहा सी गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हो अवतारे, जिम द्रौपदी राखी लाज, दै सवार सदामे काज। हे गुरु तेग बहादुर जी साडा कृष्ण भी तू है, साडा रब भी तू है। सच वे जिवें द्रौपदी की पत ढकी है, साडी पत ढक लै। उन्हां उदाहरण दित्तियां। महाराज जी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा ये धर्म खतरे च इन्हां दा। कहने लगे बच सकता है? कहने लगे हाँ, जे कोई महापुरख अपने आप को कुर्बान करता है। इस गल नूं याद रखियो, उसे साल ही सरमद का कतल होया, उसे साल ही गुरु तेग बहादुर शहीद होया। सरमद का पता होना तुहानूं? मैं वैसे गया मत्था टेकन नहीं, जामा मस्जिद के बिल्कुल बाहर उहदी कबर है। सरमद दी इक्को साल ही होया। ते विद्वान कहंदे आ औरंगजेब मुगलों की सल्तनत बिल्कुल ना जाती जे गुरु तेग बहादुर वर्गे पुक पाक अवतार का इन्हां ने कतल, उन्होंने कतल ही कहना, उस खून ने इन्हां नूं रात टिकन नहीं दिता। उन्होंने कहा महाराज खतरे च कोई महापुरख, मैं कहना किड्डी वड्डी जुरत। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा पिता जी तुहाडे तो वड्डा कोई महापुरख नहीं हो सकता। सच है वे, मैं गुरमुखो तुहानूं एक बेनती करा, हुण तां फिरका परस्ती पै गई ना चार चवेरे। ऐ मुल्क हिंदू वीरो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, असी गुरु तेग बहादुर का करजा कभी भी नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते जी। असी भी कह रहे हैं विच साडे, मैं पिछले दिन ही कहा सी मंजी साहब राम नारायण सिंह जी दर्दी साडे कवि बड़े बड़े कोई आ। उन्होंने कहा सी जदों इन्हां कहा महाराज खतरे च हजूर नूं कहा तुहाडे तो वड्डा कौन? वो किड्डी वड्डी जुरत कह देना औरंगजेब नूं कह दिओ गुरु तेग बहादुर साडा आगू है, गुरु तेग बहादुर साडे आगू ने, ओनू बदला लोगे असी सारे बदल देंगे। इहदा मतलब हिंदुस्तान का हिंदू धर्म सिर्फ एक ते आके खलो गया, जे ये बदलेगा असी बदल जाएंगे। इहदा मतलब किड्डा वड्डा आगू है जी। वो पता उन्होंने बदलना नहीं। उत्थे फिर कहते ने क्या पातशाह बच्चियों घरी जाओ। महाराज यह है कविता उन्होंने, कहा पातशाह बच्चियों घरी जाओ, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तेल अपने लहू दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है, हिंदू मंदिरां दे दीवियां विच हुण भी लहू तेग बहादुर दा बन रहा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने कहा जी बिल्कुल। एक मैं एक इत्थे होर आप जी नूं बेनती कर दियांगा, क्योंकि बहुत नफरत पैदा हो चुकी है। चार चवेरे से देखने जिस भाई किरपा राम दत्त जी ने महाराज को फरियाद की, महाराज शहीद हो गए, उन्हें फिर महाराज तो अमृत छकिया। गुरु गोबिंद सिंह तो बाद विच अमृत छक के पूरा सिंह सज के, फिर उसका नाम सी भाई किरपा सिंह जी दत्त। वो फिर चमकौर की गढ़ी च महाराज के सामने जूझ के शहीद होया है। शायद आपको इस हिस्टरी का पता हो। ये भाई किरपा राम जी फिर अमृत छक लिया। तो मैं तुहानूं भी बेनती करांगा, मैं इस स्टेज ते आया तो तुसी बड़ी भावना रखदे, मेरा सुशील वीर मैनूं बुलांदा है, पर मेरी एक बेनती है, ये आ जिहड़ी चीज़ है ये कल्ली सिखां दी है, मनुखां दी है। ये कला पंजाब वालियां दी नहीं, गोरा होवे काला होवे हिंदू होवे मुसलमान होवे, जिहड़ी रब ने दात दित्ती है इहनूं ना छेड़ो ते इहदे विचों दाड़ा निकलदा है। ये तो बाकी मैं सिख की गल बाद च करांगे, तो मनुख की पहचान है। जिन्ने भी तुसीं देखदे हो ऋषि मुनि होए ने, जटाजुट होया ना। टैगोर ने तो इत्थे तक लिखिया सी, उन्हां पुछया जिद्दों तुहानूं ज्ञान होया की कीता। सतबीर सिंह लिखदे उन्हें कहा मैं उस दिन शिप च समुंदर च, कहंदा जिस दिन मैनूं अंदर दी चिनिंग मिली सब तो पहला मैं शेव करन वाला डब्बा समुंदर भी सट्टिया सी।
क्योंकि ये ज्ञान की निशानी है। मेरी फिर अर्ज है कि महाराज जी ने कहा असीं जावांगे। प्यारे गुरु तेग बहादुर साहब तुरे 5 सिख नाल तुरदे, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, वैसे ज्यादा गिनती, भाई गुरदित्ता जी, एक बाबा गुरदित्ता जी होए ने। ये भाई गुरदित्ता बाबा बुढ़ा जी के अंश चो सन, जिन्हां दे पुत्र राम कोयर जी अगे होया। उस तो इलावा भाई उदय जी, इन्हां सारा जिक्र हुंदा। फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब तो संगतां विद्या करन आउंदियां। मैं सिर्फ इतिहास लै लिया जी, क्योंकि महाराज दा शहीदी दिहाड़ा है, मैं साखी करन बह गया। उत्थों महाराज फिर चलदे आ जी, बख्शां वरतांदे जांदे आ। इत्थे फिर महाराज पटियाले रुकदे आ, सैफाबाद जिथे अज बहादुरगढ़ है ना, ये बहादुरगढ़ नाम ही साहिबदीन ने गुरु तेग बहादुर साहब दे एक हुक्मनामा है। महाराज शायद कटक की संगत नूं लिखदे आ कि चंगे बर्तन भेजने असीं साहिबदीन नूं देने ने। गुरु तेग बहादुर साहब दे हुक्मनामे ने। आपनूं पता होवे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो बाद ये मुसलमान 40 दिन काले वस्त्र पा के सोग विच रिहा सी। आ जिहड़ा बहादुरगढ़ स्थान है महाराज का, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब पकड़े जाते हैं जी। कि मैनूं पता है इतिहास कोई मलकपुर तो जिहड़ा रोपड़ नेड़े मलकपुर है इत्थों, पर जो साडी रवायत है मेरा ख्याल है सानूं वो मन लेनी चाहिए है। आगरे तो गुरु तेग बहादुर साहब गिरफ्तार किए जाते हैं, चांदनी चौंक च लिआंदे जांदे आ। कोतवाली जिथे अज लंगर चलता है ना जी, ये कोतवाली शायद तुहानूं हिस्टरी च पता होना है, ये सरदार संतोख सिंह उन्होंने लैके दिती सी। भुलीए ना जिस बंदे ने, मैं कहना वह धड़ा की सी, मैं इधर नहीं पैना। जिस बंदे ने गुरु घर की सेवा धड़े तो उपर उठ के की, उन्होंने शाबाश देनी चाहिए। इत्थे फिर महाराज जी नूं कैद किया गया। इत्थे भाई बाबा गुरदित्ता, भाई गुरदित्ता जी ने कहा महाराज मैं सब कुछ नहीं देख सकता। उन्होंने वखरा चलाना किया। इत्थे 3 सिख कैद विच, भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी। साडा इतिहास कहता चिट्ठी लिखण का जिक्र किया जाता शलोकां दा, है ना, संप्रदाय विद्वान ही मानते आ जी। पर मैं ये फैसला नहीं करांगा भी, पर गुरु तेग बहादुर साहब के सलोक ने साडे कोल बाणी रूप ने। इत्थे महाराज जी नूं तसीहे दिते गए। तसीहे किहो जिहे सन? पिंजरा सी, ना खलो सकते सी, ना बह सकते सी, ना उड़ सकते सी। उहदे अंदर तिखे सूए लगे हुए सन। पर मैं थोड़ी जी एक बेनती तुहानूं बाणी च जरूर करनी है। शहादत तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के 15 रागां विच 59 शब्द ने ते 57 शलोक ने, जिहड़े इश्क रखदे आ नित ने विधान दा। मेरी बेनती गुरु तेग बहादुर साहब के शलोक 57 शलोक जी विच दोहरे पा के, है ना, जपजी साहब इहदी व्याख्या पूरा गुरु ग्रंथ साहब करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब के सलोक पूरे गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ ने। जिस दिन सतगुरु का शहादत वाला दिन होना, किवें मनावांगे आपां? इत्थे शब्द पढ़े जाणगे, असीं सीसगंज भी पढ़ने आ। मैं आपनूं बेनती करां, 1 घंटा लगदा जी सिर्फ, जे बोल के टेक के पढ़ो तो 1.25 घंटा लग जूगा। 59 शब्द ते 57 शलोकां का पाठ जरूर करियो। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब नाल आपां गल्लां करांगे। उंज 4 शब्द वैसे मैं अपने नेम च रखे ने जी, ये वैसे गल नहीं करनी चाहिए। आपो अपना नेम है जी, अपने नितनेम की कमाई नूं कैश क्यों करो? अपने बाबा जी की बड़ी कमाई च बाबा जी बड़ी माला, फिर बाबा जी ने फेरियां भला उन्हां दा होना है। वो दुकान ना नमैश ना लाइए बाबा जी की माला की। वाहिगुरू जी जिन्ना कोई नेम करेगा, हुण कमाइयां दा जिक्र किया गया। जिन्ना नाम जपिया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाई, देख के आंडिट किया, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान धर के 57 शलोक ते 59 शब्द। राग जैजावंती जो है महाराज जी का, जैजावंती, उस दे 4 शब्द ने। गुरु तेग बहादुर साहब की ज्यादातर जी बाणी का वो हिंदी च है जी, ब्रज भाषा के कोई शब्द ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की खूबसूरती है वे, उन्होंने 59 शब्दों में पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां। उंज असी पाठ करने जिहड़े कई बार तुसीं पाठ करो, शब्द के पहला पदा लंघन तो बाद रहाओ दियां तुकां हुंदियां। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के 59 शब्दों के
हर शब्द दियां पहलियां तुकां हीर राहो दियां तुकां। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब शुरू कित्थों करते? महाराज जी ने पहली बाणी, पहला शब्द शुरू होंदा जी गौड़ी राग च। सिरी राग मां च महाराज का कोई शब्द नहीं, गौड़ी राग है। ध्यान नाल सुनियो। पहली तुक छड्डन ते है, इसलिए है ना जी। अखीर वाली पकड़न ते है। बाणी जे पढ़ो तो पहली है साधो मन का मान त्यागो। हाँ जी। अखीर वाला श्लोक है राम नाम उर में गयो। त्यागो ते गयो दो चीजा ने। ध्यान नाल कदी पढ़ियो। पहली कहो भले पुरखो ते शब्द वरत्या साधो। ते मैं एक दिन बेनती की सी, धन का हंकार, पदवी का हंकार सच्ची मुची यह भी डोबदा है। जिन्हों अपने दैवी गुणा का हंकार आ जाए ना, उन्होंने बदलना बड़ा बख्शे। गुरु साहब ने कहा भले पुरखो तुसी बाहरों बहुत चंगे हो, पर जेड़े मन च फुरने बनाई बैठे हो, साडे तो बड़ा साधु कोई नहीं, छड्ड दिओ ओए। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस भागो। अखीर ते कहने मान नू त्याग दिओ ते पकड़ो कि राम नाम उर में गयो, जाकै सामने कोए जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो खोए। एक मैं होर आप बेनती करी, मैं थोड़ा जिहा बाणी ते अर्ज करनी चाहना। मैं इतिहास जान बुझ के रखिया जी। मेरा इन्ना क तजर्बा हुण हो गया है, होमे च नहीं, उंज ते चाहिदी कथा शब्द च होवे। अज भी मैं बैठा भाटिया साहब मेरे नाल आए, तो मैं किहड़ा सज्जन जी, मैं कहा जी भाई साहब जी कथा, मैं कहा भी सच्ची है वे, सानू कोई कहंदा थोड़ा कथा करो, असं अपनी मर्जी ना करने। तुसीं देखो एक टीचर तुसीं सैमीनार ते बंदा बुलाया होवे ते उहनूं यूनीवर्सिटी वाले कहंदे ने भी इस विषय ते परचा पढ़ेगा। आपां तां परचे पढ़ने अपने विरोधियों दे। मेरी बेनती है जिवें गुरु तेग बहादुर साहब दा हुणे प्रोजैक्टर लाया होवे, घंटा कथा होवे, शब्द इक्को ही होवे, जे एक घंटे विच एक शब्द दे अर्थ करन वाला ते सुनन वाली संगत पल्ले बन के लै जाए, शब्द चेते हो गया ना, समझो तुसी अज गुरु संगत विचों कुछ खट के गए। साडी समस्या है जी। असीं मैं पिछले दिन ही कहा सी, तीन गल्लां ने, सिद्धांत, संवाद ते साखी। सिद्धांत नूं समझण लई संवाद कीता जांदा है, ते जिन्हां नूं संवाद करना ना आउंदा होवे उन्हां नूं साखी सुनाई जांदी है। विचों इतिहास सुन लो। मैं एक शब्द लैना गुरु तेग बहादुर साहब का, मैं ज्यादा नहीं। असी सारे जिन्हें नहीं भी पढ़ी, भी कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी का विराग में कीर्तन हुआ। नहीं प्यारिओ, गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च ना तीन लफ्ज मैं वरतना हूं, शायद इतने तुहाडे कथा करके गया कि नहीं। यदि सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च त्याग है, फिर गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च बैराग है, तीसरा गुरु तेग बहादुर की बाणी च अनुराग है। तीन लफ्ज फिर ध्यान ना सुनियो, त्याग, बैराग और अनुराग। अनुराग का लफ्ज ही अर्थ हुंदा प्रेम। जे सिर्फ ते त्याग ते बैराग होवेगा ते भारत विच पहला बड़ियां संप्रदावां सन जिहड़ियां त्यागी ते बैरागी सन, पर गुरु तेग बहादुर ने, तेग बहादुर सतगुरु सच्चे पिता ने त्याग ते बैराग तो बाद अनुराग पैदा किया है। थोड़ा ध्यान ना सुनो। हुण पहला मैं शब्द वरत्या त्याग कादा, घर दा थोड़ा, बच्चों का नहीं। वो प्यारिओ सच ए वे, गुरु तेग बहादुर साहब तां कहंदे हो लोको, जिस परमात्मा नूं पाण लई तुसीं संसार नूं त्याग रहे हो, उस रब ने ते संसार नूं त्याग्या नहीं, तुसीं किस रब नूं लभण तुर पए। फिर सुनो, आपां रब नूं पाण चले जी काहदे लई? संसार छड्डण लई, ते रब ने संसार छड्ड दिता। जिन्हों लभण चुलिया, महाराज कहते वे संसार तुम देख दे ए हर का रूप है, फरीदा खालक खलक में खलक वैसा रब माहे। आप कहने दुनिया छड़ के रब पान चले। महाराज जी ने फिर उन्होंने क्या, काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोप मद जो बास बस्त है मुकर माहे, जैसे शाही तैसे ही हर बसे निरंतर घाटी खोजो भाई। मैं बेनती करा, सब तो पहला त्याग की। हुण अज भी बाहर ते जोर जी, मैं आ चीज छड़ दी, वो गुरमुखो अंदर दे फुरने त्यागने मरण दे बराबर है। दुनिया मैं रोटी छड़ दी जी, मैं आ छड़ दिता जी, नहीं, इनू धर्म ना कादा जोड़ने पे। फिर बेनती है,
मैं आ खाना छड़ दिता जी। वाहिगुरू जी चेते रखियो, जदों बंदा इबादत करन लग पैंदा, सिमरन विचों जिहड़ा जीवन निकलदा सही अर्थां विच ओही जीवन है। सिमरन दसदा तू बोलना किवें, सिमरन दसदा तू बहना किवें है, सिमरन दसदा तेरी खुराक की है। जिस बंदे दी सुरत उंजी खिंडी पई उहदे वास्ते जो मर्जी वो करी जा। सब तो पहला फुरने त्यागने बहुत मुश्किल ने प्यारिओ। अखां देखदियां ने, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫੁਰਨਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਥੌਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਐਨ ਸੁਭਾਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਨਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੈਰਾਗ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਥਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸ਼ ਟੀਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਭਰਥਰੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਠੋਕਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਰਥਰੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੋਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਮ ਪੰਡਤ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਈ ਆਪਾਂ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਜਵਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਪਿੰਗਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਕੇ ਹਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਭੋਗਣੀ, ਏਦੂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਕੋਲ ਫਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਓਏ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼ਤਕ ਮੀਨਸ 100। ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੇ 100 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਬੈਰਾਗ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੌਥਾ ਬੈਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਬੈਰਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
मैं हुण भरतरी की गल सुनाई, झूठा ही। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। की स्त्री ते दारा मीन्स स्त्री, मीत दर मित्र। क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब है, कहता है हित स्यों बांध्यो चीत। ये लालच करके मेरा मेरा कहंदे आ, मेरा भरा, मेरी धी, मेरा पुत्र, मेरा चाचा, मेरा भांजा। गुरु साहब कहंदे आ तेरे नहीं, ये जिहड़ी तेरी जेब च पे ओदे ने। हित स्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी ने को। ये अचरज है रीत, ये बैराग हो गया ना। अगे गुरु जी कहते मन मूर्ख अजगु ने सिमजत सिख दे, हारियो नीत नानक भवजल पार पर है, जो गावे प्रभ के गीत। प्रभ के गीत अनुराग है। फिर सुनो, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख से ही जग फांदे, को काहू को नाही। बैराग है जी, कोई किसी का नहीं। सुख में आन बहुत मिल बैठ, रह चौं जित के रह, रहत चौं दिस के रह। विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जाबी हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। मैं अर्थ ता नहीं कर रहा, हिंदी है जी बड़ी सौखी। प्रेत प्रेत कर भागी, बंदा निराश हो जाता, सारी दुनिया झूठी। अगे बैराग तो बाद अनुराग है। ये बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो निको लगायो, पर उदास ना होवी। जदों सारे साथ छड़ जन ते वैगुरु नाल खलोंदा है। ये बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो निको लगायो, अंत बार नानक बिन खारजी को। मेरी बेनती, एडू वड्डी सकारात्मक पॉजिटिव सोच के मिल सकती। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट कर गज जू हो सहाय। जिवें हाथी नूं बचा लिया तंदवे तो। अगला श्लोक है इन्नी पॉजिटिविटी, कहने लगे बल होवा बंधन छुटे। ये दो तुका सामने रखो। पहली ये बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। अगली तो के बल होवा, एडी वड्डी चढ़दी खड़ा। गुरमुखो सच्ची जदों आ दो तुका मेरे मन च आउंदियां, मन डिगदा है जी, एवें कही जाओ। ये खिन खिन एदा सुभाव ही है। महाराज कहें बल होवा बंधन छुटे, सब किछ हो तू पाए। गुरमुखो दुनिया कहती है कछु ना हो तू पाए, गुरु तेग बहादुर कहते ना मेरे को आ सब किछ हो तू पाए। किथे महाराज नानक सब की तुम्हारा हाथ में, तुम्हें होत सहाय। अगे फिर कहते ने नाम रहो साधु रहो। कमाल हो गई। गुरु तेग बहादुर साहब बारे क्या जाता है कि महाराज ने जो शहादत तो पहला ना कहते पिंजरे तो कढ़िया। चलो आओ फिर आप उत्थे आ जाने। महाराज जी ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, सतगुरु पिंजरे च ने। 10 नवंबर 1675 ਨੂੰ चांदनी चौक विच ढंडोरा पटवा दिता गया सी गुरु तेग बहादुर साहब के नाल दे सिख। क्योंकि फारसी स्रोतां ने तो बहुत कुछ गंदबंद लिखे, दुश्मन लिखदा ही हुंदा है जी। क्योंकि साडी प्रॉब्लम ये वे जेड़े बंदे अनमत दे साडी व्याख्या कर रहे ना, वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया उन्हें। जे शब्द पढ़े उन ते पता लगे गुरु तेग बहादुर साहब की ने। वो तो सुनिया सुनाइया गल्लां कर रहे हैं। किरदा ते सतगुरां दी बाणी है ना। ढंडोरा पटवा दिता। ढंडोरे का समझना पुराना शब्द है जी, तुहानूं पता होना है। एक डोंडी पटवानी, ढंडोरा पटवाना। वो ढोल लैंदा हुंदा, सुनो 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 कहंदा, महल्ले वाले पिंड वाले इहनूं ढंडोरा पटवाना कहंदे सन। उन्हें क्या कल नूं चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब कित्थे, उन्हें कहना सी किड्डे लफ्ज भैड़े वरते होणगे। उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, नहीं तो कतल किया जाएगा। प्यारिओ 10 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर साहब का पिंजरा बाहर लिया गया कोतवाली। ये सारा थां खुला सी जी। भाई मती दास जी ने देखा। साढ़े पुराने स्रोता कहते हैं सिख सच्ची मुच्ची इन्ना बीरा च आ गया। उन्हें कहा महाराज मैं देख नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकना। पर गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा शांत। गुरु तेग बहादुर साहब के सामने भाई मती दास जी को पहला लिया गया। उंज वैसे कुछ कहते हैं भाई दयाला जी ने, पर मेरी बेनती जो सुनाने भाई मती दास जी को बाहर लिया। गुरु तेग बहादुर साहब पिंजरे सन। ये सब कुछ तां सी इन्हां सामने तसीहे दिओ। हो सकता है ये तसीहां नूं देख के डोल जाण। बड़ा मुश्किल हुंदा जी सहना। भाई मती दास जी ने 3 गल्लां कहियां, करामात दिखाओ। 3 ही गल्लां सन जी। नहीं तो इस्लाम कबूलो,
तीसरी गल मौत। भाई साहब जी ने महाराज गुरु तेग बहादुर साहब वल वेख्या ते महाराज मुस्करा पे। भाई साहब कहते आ ना इस्लाम कबूल करांगा ना करामात दिखांगा, असी मौत नूं स्वीकार करने। वैगुरु जी ब्राह्मण सन, भाई मती दास भाई सती दास जी होनी। मैं इस करके क्या भी सिक्खी नूं पुरानियां जातां नाल ना जोड़ो। जिदन सिख ने गुरु का अमृत छक लिया उदन गुरु का सिख ही है बस केवल। उन्हें कहा जी करामात नहीं, मौत कबूल। उन्हें कहा मारना इस तरह नहीं। आ सामने गेलियां, गेलियां समझने ना, लकड़ दियां गेलियां, शतीर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जकड़ के तेरे सिर ते आरा चलाया जाकर ऐसता ऐसता दंदे चलणगे। भाई मती दास कहन लगे मैनू स्वीकार है। उंज प्रिंसीपल गंगा सिंह उन्होंने हो सकता है वापरी हो, वैसे कवि अपने हिसाब नाल कह देंगे। वो तो कहते होंगे सन, महाराज जी ने कहा, भाई मती दास जी ने कहा तुसी कह रहे हो जे इस्लाम कबूल करोगे तो आ कुछ मिलेगा। मैं तुहानू अगे तां क्या, असली धर्म नहीं बदलदा हुंदा। ਜਿਹੜੇ बदल जाते होंगे ने वो धर्म ही नहीं होंगे, तो ਜਿਹੜੇ पैसे नाल बदलाते होंगे ने धड़ा ਵਧਾਉਂਦੇ होंगे ने, धर्म नहीं वाधा हुंदा। धर्मी तो एक खलो जाए दुनिया की ताकत उन्होंने चुका नहीं सकती। सारी चांदनी चौंक वेखना लोग तमाशा। उन्हें क्या काजी दोनों विचों एक दी चोण मौत जां जिंदगी, जे इस्लाम करा कबूल जिंदगी। कह लगे हाँ, वो कह लगे जिंदगी च की मिलेगा, कह लगे डोले हूरां। यही है ना कमाल की गल। जिस दा त्याग कर ली गुरु तेग बहादुर कह रहे ने फुरना भी त्याग दे पराई औरत दा, ते कमले लोग ओदा झांसा दे रहे। इन्हों पता नहीं, वो तो फुरने भी छड्ड के बैठा है। उन्हें कहा जी एक ये सुख दूजा आरा। कह लगे दोवां विचों एक दी चोण तां करा जे दोवां दा स्वाद वेख्या होवे। कह लगे गृहस्थ सी, गुरु के दीवान सन भाई मती दास, मैं सारे सुख वेखे पर आरा नहीं देखा। चला तो सही, कहते उत्थे सिर ते आरा रखिया, गुरु तेग बहादुर साहब देख रहे आ। उत्थे साडे एक विद्वान ने शब्द लिखे ने, 2 अंगुलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोलदे सुन काजी धर धीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप। है शब्द वरदे आरा मैनू भौंदा धर्म छड्डना पाप, टुकड़े इस शरीर दे करें जे लख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़ सा तेरा दीन नहीं लोड़। आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जांदा ते जान दे मेरा सिख ही सिदक ना जाए। भाई साहब ने कहा कि मेरा सिख ही सिदक ना जाए। वो समझ गए। अखीर ते उन्हें कहा कोई अंतम इच्छा। भाई साहब जी कहते इको है, एक तो मैं अपने मुरशद का कलाम पढ़न लगा बाणी, मैं जप शुरू करना है, आरा इना ऐसता चलाई कि मैं जपजी पूरा कर ला, मेरी जीव ना कट्टी छेती। भाई साहब ये सलीयत जे उन्होंने कि आरा चलांदे कहा भी छेती ना कट्टी। दूजी मेरी इच्छा है जिधर तू मैनू खड़ा किया है ना, सतगुरां दा पिंजरा इधर कर दियो, मैं अंतला सवास भी अपने गुरु तेग बहादुर के दर्शन करके लेना। इस तरह नहीं होया जी। महाराज पिंजरे च खलोते सन, भाई मती दास दे सीस ते आरा चलिया। कहना सौखा है जी, कथा करनी सौखी है। ये कोई नाटक थोड़ा है। तुसी देखो सिर दे विचों रख के पूरी मत्थे दी हड्डी नूं 2 हिस्से, नक दी हड्डी नूं 2 हिस्से, चबाड़ा 2 हिस्से। इतिहास कहता है कि जलाद चलांदियां दे खत कंबन लग पे, काली कर लग पे। भाई साहब ने इशारा किया जप, पर महाराज ने क्या नहीं सिखा, जपजी नूं आरे दे दंदे भी नहीं खो सकते। इतिहास कहता है दोनों हिस्से खब्बे सज्जे डिग गए, तो दोनों टुकड़ियां विचों जपजी साहब की आवाज़ हुंदी सी। अर्धो उर्द 8400 डारा, परयो पृथ्वी पर हवै द्वै फारा, दोनों तन ते जपजी पढ़े हीरत सब कह, अचरज बड़ा। मैं एक इत्थे बेनती तुहानूं करनी, साखी मैं करना पिया। गुरमुखो जिन्हां ने कदी भी जपजी साहब का पाठ ना किया, भाई मसीह दास दे खून नूं अंदर समो के
कल सवेर तो जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिओ। ਤਾਂ फायदा नहीं, तो फिर मैं कलाकार आया, तुसीं इकट्ठे होए हो सुन के चले जाओगे, मैं टीवी ते आउंदा नहीं। सिੱਖੀ कलाकारी नहीं, सिੱਖੀ जीवन जाच है। मैं बेनती की ते ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਅੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਐਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਸਨ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮਰਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਲਓ, 80 ਤੋਂ ਕਰੀਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸਿਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, 3 ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੇਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਜਾਂਬੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਬਾਲੇ ਸਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਸਹਿ ਜਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਗ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਪ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਖੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਜਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਖੀ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਚਿਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਬਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਵਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
छोटी जी गल नहीं, बड़ी वड्डी गल है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं बाहर लिआंदा। ये तकरीबन अज दे टाइम मुताबक 11 बजे जी। कईयां ने पुराने स्रोतां ने लिखिया सोरी शिप दे बाहर लिआंदा। काजी अब्दुल वाहब आया, दरोगा अब्दुल्ला आया, समाने वाला जलाद जलालुद्दीन आया। महाराज जी नूं काजी अब्दुल वाहब अगे वध के कहंदा जी 3 गल्लां जी, इस्लाम, करामात ते मौत। सतगुरु हस पे, मारे खिड़े चेहरे, कह लगे काजी तेनों वैसे सवाल नहीं सी करना चाहिए। कहंदा जी क्यों? कह लगे कल सारा दिन मौत का तांडव नाच होया चौंक विच, तेनों समझ जाना चाहिए सी जिहड़े सिख इन्ने अडोल ने गुरु की है, तू फिर सवाल दोहराई जाना। महाराज जी ने कहा ना। उन्हें कहा मौत? हजूर ने कहा तू मौत बारे की डराना, मैं तो सारी जिंदगी लोगों को शब्द नाल मौत चेते करांदा आया। मैं तो सारी जिंदगी दस्या लोगों एक दिन मर जाना है, एक दिन शरीर खत्म हो जाना है, एक दिन तन ने बिनस जाना है। इत्थे बड़े बड़े चले गए। इत्थे साडे एक विद्वान कहंदे ने, काजी ने कहा तुहानूं पता नहीं मैं खानदानी काजी हाँ। अब्दुल वाहब नां सी इहदा। अब्दुल्ला दरोगा कहंदा मैं खानदानी दरोगा, मेरा बाप दादा भी दरोगा सी। जलालुद्दीन कहंदा मैं खानदानी जलाद हाँ। सतगुरां ने कहा सबब बड़ा सोहना है, मैं खानदानी शहीद हाँ। मेरा दादा शहीद होया, मैं शहीद होने लगा, पर तुहाडा जिहड़ा आ जलादपुणा आ काजीपुणा अज तो बाद मुक गया, पर याद रखो मेरे पोते भी अगों शहीद होने। उत्थे लिखते ने, महाराज लिए शेर लिखे विद्वान ने, मेरे अजदाद से मिला है मुझको विरसा शहादत का, मेरी औलाद की जागीर है जामे शहादत की। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछया गया जी तुहाडी अंतम इच्छा? सतगुरां ने कहा एक तां सा इशनान करना है। तुसीं जदों सीसगंज जांदे हो, मैं हर साल जाना जी, ते मैं तो इक्को गल कहना गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे कोई सिख भी जाए इनू मर्यादा च ना लियो भी साडी मर्यादा च कित्थे लिखिया निजी जीवन कमाउण वास्ते भावना आप बनानी पैंदी। जदों भी सीसगंज जाओ एक जपजी साहिब दा पाठ जरूर टेके करके आया करो, क्योंकि ओदियां हवावां च गुरु तेग बहादुर साहब दे बोल ने। महाराज जी ने कहा एक तां मैं इशनान करना, वो थल्ले खूह है ना, तुसीं गए होवोगे उत्थे, फिर सतगुरां ने इशनान किया। मैं उत्थे बहना कई बारी रात में, जे संगत ना होवे। सिक्खी तां सारी है ही रूहानीयत। असीं हुण असीं व्याख्या करने सैलानियां दी तां बाबा जी इत्थे तुर गया जी इत्थे तुर गए। भाई साहब कहंदे सिखो ये व्याख्या ना करिया जे कि बाबा जी सैलानी की तरह ने व्याख्या ये करिया जे जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सो, जिथे गुरु के चरण पै जन उत्थे रूहानीयत है। उत्थे सतगुरां ने इशनान किया, बस्तर पहरे। उन्हें कहा जी हुण इत्थे बोर्ड का रुख सी जी, जिहड़ा थल्ले असल थल्ले थां है ना, उत्थे बोर्ड का रुख सी, चबूतरा बनाया गया थड़ा। सतगुरु थड़े ते बिठा दिते गए। कहने दसो होर इच्छा? कह लगे मैं जपजी साहिब का पाठ करना। मैं सच्ची तुहानूं दसां, जदों मैं इतिहास पढ़ना गुरु अर्जुन देव शहीद होने तो पहला जपजी साहिब पढ़िया, बाबा बुढ़ा जी ने चोला छड्डण तो पहला जपजी साहिब पढ़िया, भाई गुरदास साहिब जी चोला छड्डण तो पहला गोइंदवाल जपजी साहिब बोल के पढ़िया, भाई मतीदास जी ने जपजी साहिब पढ़िया, भाई गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने शहीद होने तो पहला जपजी साहिब पढ़िया। गुरमुखो भाई तारू सिंह किन्ने दिन खोपड़ी तो बिना जिदन शहीद होए पहला बोल के जपजी साहिब पढ़िया। मैं तो जोर दे के बेनती कर चलिया जपजी साहिब हर सिख पढ़िया करो। बाकी जो अमृत छकांगे जाप कहे सवैये ने चौपी आनंद साहिब रहरा साहिब सोला साहिब तो घट्टो घट्ट आप पढ़निया ना जी। उत्थे फिर महाराज जी ने कहा जपजी साहिब शुरू करना है। सतगुरु चबूतरे ते बैठ गए। जदों गुरु तेग बहादुर साहब ने जपजी साहब पढ़िया होगा किहो जी फिजा हो गई होगी, कैसी आवाज होगी। चार चफेरे आवाज गूंजन लगी जप दी। महाराज जपजी साहब पढ़ते जा रहे आ, खंडां ते पहुंच गए। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड।
38ਵੀं पौड़ी गूंज उठी, सलोक पूरा ब्रह्मांड गूंज उठिया। महाराज जी ने केती छुट्टी नाल कह के वाहगुरु अगे सीस झुकाया। जलालुद्दीन ने पूरे जोर नाल अपनी तलवार चलाई, धर्म की चादर उत्थे शहीद हो गई। धन गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होए, झखड़ आया। प्यारिओ, भाई जैता फिर सतगुरां दा सीस लपेट के तुरिया। ते मैं पिछले दिन ही बेनती की, वेखो साडी किड्डी किहो जी साडी बिरती है। गुरु तेग बहादुर साहब दे 2 संस्कार होए आ, पता है ना आप जी नूं? एक रकाबगंज होया, एक आनंदपुर साहब होया। आनंदपुर साहब जिदन सीस आउंदा पिछले साल, पता नहीं मेरे मन च सीसगंज आया। मैं मना किड्डी वड्डी गल होए, एक शरीर ते संस्कार 2। जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब दा सीस भाई साहब, भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जिहड़े बाद च बने, आनंदपुर साहब लैके गए। उस दिन मैनूं दस रहे सन कमेटी वाले, कहंदे 15 बंदियां तो बाद बंदे नहीं होंदे। एडी वड्डी गल आपां कदी जाने आ जी उत्थे? ते आप नूं शायद पता होना। मैं अगे बेनती करना, भाई साहब भाई जैता जी उन्हां दी इक्को सी कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब दा सीस नहीं रुलन देना। अज आपां जातां पातां च पए होए आ ना, उस रंगरेटड़े ने महाराज दा सीस सीने नाल ला लिया। कईयां ने कहा टोकरी च, खारी च किया, पर मैं कहना इस मसले च नहीं पैना चाहिए। देखो सीस सीने नाल ला के रात नूं तुरिया, भाई उदा रठौर नाल इत्थों तुरे। जो मैं पढ़िया, पहला पड़ा उन्हां बागपत किया, शेख वाहुद्दीन दे तकीए च। उत्थे भाई कृष्णपाल हिंदू दे घर रोटी खवाई गई। इत्थों भाई जैता दी सीस चुक के तुरदे अस ते जरनैली सड़क छड़ दित्ती, पगडंडियां, जंगल, नदियां नाले। इत्थों फिर तरावड़ी पहुंचते आ। तरावड़ी इत्थे धोबी दे घर रहिंदे आ भाई देवाराम। इस तो सीस चुकते आ, टांगरी नदी पार करते आ ते अगला पड़ाव वाले करते आ माजरी महला। इत्थों सीस चुकते आ ते भाई साहब नाभा साहब, एक नाडा साहब नाभा साहब बनूड़ नेड़े, इत्थे पहुंचते आ जिहड़ी अजकल मोहाली है जां चंडीगढ़ बनिया। इत्थों भाई साहब लंघते हुए सीस लैके कीरतपुर साहब की धरती से पहुंचते। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब, मैं कहना उहदी सेवा नूं भुल सकने आपां जी? भाई साहब दी सीस चुक के कीरतपुर साहब पहुंचे। मन च ये सी कि शायद इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब का संस्कार होया, गुरु हरराय साहब जी का होया। शायद परिवार जदों सीस लैके पहुंचे, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद जी, संगतां आईयां बैराग दियां 4 चफेरे, समझो बैराग दियां घटावां उमड़ियां सन। भाई जैता जी ने सीस गुरु गोबिंद राय जी के सामने उन्हां दी झोली च रख दिता। 9 साल की उम्र अपने पिता के सीस नूं। मैं कहना वाहिगुरू जी, आ दिन आने वाले ने 11 नवंबर अज दे आ रहे ने, हर साल आपां करने आ। ऐदकी गुरु तेग बहादुर साहब का शहादत 17 दसंबर की आ गई जी। 11 नूं चमकौर साहब, 12 नूं माछीवाड़े, 13 नूं ऐदकी ज्योति स्वरूप कर रहे। शायद तुसीं जानते होवोगे कि नहीं? हाँ, 13 नूं ऐदकी पहलां कर रहे क्योंकि 14 दसंबर नूं बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, वो आपां फतेहगढ़ साहब मनावांगे। मैं बेनती करा, उत्थे फिर भाई साहब ने सीस महाराज दी झोली च पाया। सतगुरां ने घुट के सीने न लाया। सीसगंज के सामने गुरुद्वारा अकाल बुंगा है, हुण जे जाओगे जरूर दर्शन करियो। उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पिता के सीस का संस्कार हुंदा देखिया, अपनी हत्थी लांबू लाया, सोहला साहब का पाठ किया। उत्थे फिर हजूर ने कहा, इहो जिहा पंथ सजावांगा, इस जालम राज दीयां जड़ां नूं पट के रख देगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उन्हां दी शहादत हुई। ते फिर गुरु गोबिंद सिंह ने जदों अपनी रचना की, उहदे च लिखिया, तिलक नयू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साखा, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। चलो फिर कि अर्थ करांगे, सिर न दिया। ठीकर फोर दली सिर, प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना
किनू किसे नहीं की। तेग बहादुर की चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। उस गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार नू आप जी अज याद करते पे हो। मैं बड़ा संखेप जिहा यतन किया, इतिहास भी ते बाणी भी। मेरी बेनती है भाई सिखो, अमृत की दात लवो, ते एक मैं थां थां ते कहना घरां च पंजाबी बोलिया करो प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, बोलते नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलते। कोई हिंदी बोली जाता, कोई अंग्रेजी के गेड़े दई जाता। वाहगुरू जी फर्ज बनता है साडा। मैं फिर बेनती करांगा, गुरमुखी जरूर सीखो। हुण कोई टीचर थोड़ा बच्चों आपां घर सिखा सकने, हाँ जी, हुण तां बहुत साधन बन गए आ। मैं फिर अर्ज करा, तुसीं देवनागरी च तर्जमा कर उलत्था कर लो, फारसी च कर लो। गुरमुखी दीआं लगा मात्रा समझण तो बिना गुरबाणी दी ना व्याख्या हो सकनी है, ना शुद्ध उचारण हो सकना है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह तुहाडी समुची कमेटी नूं, हर कीर्तन सेवा सोसाइटी, हाँ जी, तुहानूं गुरमुखो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। तुसीं बड़ा टेक के सुनिया। तकरीबन आपां नूं हो ही गया जी, पौने 2 घंटे हो गए हैं, तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ जी, बस थोड़ा जा नाम जप ली, उदों बाद समाप्ति करांगे। तो मैं वैसे चाहिदा तो नहीं, मैं पहला खिमा मंग लेना, मैं पटियाले जाना, हाँ जी। तो मैं जिहड़ा समा रुकना सी, मैं 15 मिनट बाद सतगुरु की सिफत कर दी है। तो आप जी शहीदी साकियां ते जरूर आयो। तो गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पढ़ो, अज तो शुरू कर दो। 59 शब्द ने, 17 तक महाराज का शहीदी दिन होना। जे 10-10 5-5 शब्द भी रोज पढ़ी जो, गुटके मिल जाते हैं। आप जी पता होना गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दे बड़े सरल शब्द ने, सारे पढ़ियो। आओ जी, पहला दास बोलेगा, फिर सिंह जी, गुरमुखो तुसी सारे बोलियो, तीजे हिस्से विच बीबियां। बस इं समझो फुरना ही बनाना है ना, ख्याल ही सब कुछ करता है जी। मैं पिछले दिनों तो ना एक मेरा इच्छा, मैं मन उत्ते बहुत पढ़ दिया वा, वेख भी रहा, जिन्हों मनोरोग कहने। फुरनिस थॉट इज थिंग, जो सोचोगे हो जाना है, जो कुछ सोचना वो कुछ वापरन लग पैंदा। यूं समझो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वो साडे सन्मुख ने, उन्हां दे चरनां च खलो के नाम जपने पे। करो किरपा, पहला दास फिर सिंह, तीजे हिस्से विच बीबियां भैणां जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सारे सिंह बोलो उच्ची आवाज। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सिंहो उच्ची आवाज बोलो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਕੱਠੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ
ਸਭ ਥਾਈਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।